Hello students, this is Ritu Bhatia. Welcome to my channel Edu Junior Ritu Bhatia. In this video we discuss class 6 science chapter components of food. A substance which is essential for maintaining life and for growth is called a nutrient. Our food has 5 major nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. In addition to these nutrients, water and roughage dietary fiber are also important parts of our food. Water and roughage do not have any food value, so they are not considered to be nutrients. Thus, when we talk of components of food, we mean 5 nutrients plus water and roughage. Components of food. Our food has 7 components. These are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, roughage or dietary fiber. Each component of food has its own function in the body. जीवन को बनाए रखने और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। इन पोषक तत्वों के अलावा पानी और रफेज आहार फाइबर भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पानी और रफेज का कोई खाद्य मूल्य नहीं है, इसलिए उन्हें पोषक तत्व नहीं माना जाता है। इस प्रकार, जब हम भोजन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो हमारा मतलब 5 पोषक तत्वों के साथ साथ पानी और रफेज से होता है। भोजन के कंपोनेंट्स। हमारे भोजन में 7 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हैं: 1. कार्बोहाइड्रेट, 2. वसा, 3. प्रोटीन, 4. विटामिन, 5. खनिज, 6. पानी, 7. रफेज या आहार फाइबर। भोजन के प्रत्येक कंपोनेंट का शरीर में अपना कार्य होता है। Test for starch. The presence of starch in a food item can be tested by using a dilute iodine solution. This test is based on the fact that iodine produces a blue-black color on combination with starch. So, a food item which gives a blue-black color on adding a few drops of dilute iodine solution will contain starch. Cut a potato into 2 pieces with a knife. Add 2 or 3 drops of dilute iodine solution on the freshly cut surface of the potato piece with the help of a dropper. A blue-black color appears on the cut surface of potato. The appearance of blue-black color shows that potato contains starch, which is a carbohydrate. किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण डाइल्यूट आयोडीन घोल का उपयोग करके किया जा सकता है। ये परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर नीला काला रंग बनाता है। इसलिए, एक खाद्य पदार्थ जो डाइल्यूट आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालने पर नीला काला रंग देता है, उसमें स्टार्च होगा। आलू को चाकू से 2 टुकड़ों में काटें। आलू के टुकड़े की ताज़ा कटी हुई सतह पर ड्रॉपर की मदद से डाइल्यूट आयोडीन घोल की 2 या 3 बूंदें डालें। आलू की कटी हुई सतह पर नीला काला रंग दिखाई देता है। नीला काला रंग दिखाई देना दर्शाता है कि आलू में स्टार्च है। Test for proteins in food. The presence of proteins in a food material is tested based on the fact that proteins give a violet color with an alkaline solution of copper sulfate. 2 solutions are needed for testing proteins: copper sulfate solution and sodium hydroxide solution. भोजन में प्रोटीन की जांच। भोजन सामग्री में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच इस आधार पर की जाती है कि प्रोटीन कॉपर सल्फेट के अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ बैंगनी रंग देते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए 2 सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है: कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलाकर अल्कलाइन बनाया जाता है। टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन मिल्क. द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन मिल्क कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज. टेक 2 milliliters of milk in a test tube. Add a little of dilute sodium hydroxide solution. Then add 2 or 3 drops of copper sulfate solution and shake the test tube. A violet color appears in the solution. This shows that milk contains proteins. दूध में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml दूध लें। थोड़ा पतला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालें। फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंदें डालें और टेस्ट ट्यूब को हिलाएं। घोल में बैंगनी रंग दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि दूध में प्रोटीन है। टेस्ट फॉर फैट इन फूड.
The presence of fat in a given food item can be tested on the basis of the fact that fats produce a greasy patch when rubbed on a clean sheet of paper. The greasy patch produced by a fat on paper is translucent, which lets some light to pass through it when the paper is held towards a source of light. किसी दिए गए खाद्य पदार्थ में फैट की उपस्थिति का परीक्षण इस तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि जब फैट को कागज की साफ शीट पर रगड़ा जाता है तो उस पर एक चिकना धब्बा बन जाता है। कागज पर फैट द्वारा बनाया गया चिकना धब्बा ट्रांसलूसेंट होता है, जो कागज को प्रकाश के स्रोत जैसे बिजली का बल्ब या धूप की ओर रखने पर उसमें से कुछ प्रकाश को गुजरने देता है। We can test the presence of fat in a given food as follows. Rub a small quantity of the given food in the center of a brown paper. Hold this paper in front of a source of light and look through it. If the food has left a bright greasy patch or translucent patch on paper, then fat is present in the food. दिए गए भोजन की थोड़ी मात्रा को भूरे रंग के कागज के बीच में रगड़ें। इस कागज को प्रकाश के स्रोत के सामने रखें और इसके आर पार देखें। अगर खाने की वजह से कागज पर चमकीला चिकना धब्बा या पारदर्शी धब्बा रह गया है, तो खाने में फैट मौजूद है। What do various nutrients do for our body? ग्लूकोज, केन शुगर, साधारण चीनी और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वह स्टार्च है और यह गेहूं और चावल जैसे अनाज से आता है। इसलिए जब हम चपाती, ब्रेड, नूडल्स, चावल, डोसा और इडली आदि जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो हम अपने शरीर में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और यह स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक कि आलू, जिसे हम लगभग हर रोज किसी न किसी रूप में खाते हैं, उसमें भी बहुत सारा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़ और शहद, केला, आम, खरबूजा और पपीता जैसे फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वास्तव में फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से दोगुनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक महंगे हैं। चूंकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। हमारे शरीर को कई खाद्य पदार्थों से फैट्स प्राप्त होता है, जैसे मक्खन, घी, दूध, पनीर, तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और नारियल का तेल आदि, अंडे, मांस, मूंगफली, काजू और सोयाबीन। फैट्स पौधों के साथ साथ जानवरों से भी प्राप्त किया जाता है। Some of the plant sources of fats are मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, तिल और मेवे। और फैट्स के कुछ एनिमल सोर्स हैं: मक्खन, घी, दूध, क्रीम, पनीर, अंडे और मांस। प्रोटीन शरीर को नई सेल्स बनाने के लिए सामग्री प्रदान करते हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं और इसे विकसित करती हैं। प्रोटीन क्षतिग्रस्त बॉडी सेल्स की मरम्मत करने वाली सामग्री भी देते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता। प्रोटीन से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं: दूध, पनीर, दालें, मटर, बीन्स, सोयाबीन, मूंगफली, मछली, मांस, चिकन और अंडे। ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। प्रोटीन प्लांट्स के साथ साथ एनिमल खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जा सकता है। दालें, मटर, बीन्स, सोयाबीन और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ प्लांट प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध, पनीर, मछली, मांस, चिकन और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ एनिमल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन: गुड आईसाइट, हेल्दी टीथ, गम्स एंड बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए विटामिन आवश्यक हैं। वास्तव में विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। हालांकि हमारे शरीर को विटामिन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे भोजन में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन हैं: विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6,
विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। विटामिन B1, B2, B6 और B12 को एक साथ लेने पर उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए इन सभी विटामिनों की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए आइज, स्किन एंड हेयर की सुरक्षा करता है। इसलिए विटामिन ए अच्छी आइज, स्किन एंड हेयर के लिए आवश्यक है। विटामिन ए के वेरियस सोर्स खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, मक्खन, गाजर, फिश लिवर ऑयल, अंडे, हरी सब्जियां, आम और पपीता। इन सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन B1 डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स के विकास और उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। विटामिन B1 निम्नलिखित फूड प्रोडक्ट में अच्छी मात्रा में मौजूद है: दूध, अंडे, मांस, साबुत अनाज जैसे गेहूं के दाने और चावल, आलू, खमीर और हरी सब्जियां। विटामिन C, दांतों, मसूड़ों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन C आवश्यक है। Vitamin C also increases the resistance of our body to infection and helps to fight diseases. विटामिन C इनमें मौजूद है: खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद और हरी सब्जियां। दरअसल लगभग सभी ताजे फलों और सब्जियों में कुछ विटामिन C होता है। विटामिन D नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए आवश्यक है। विटामिन D helps our body to absorb calcium mineral from the food. और यह कैल्शियम हड्डियों और दांतों को कठोर और मजबूत बनाता है। विटामिन डी खाद्य पदार्थों में मौजूद है जैसे दूध, मछली, अंडा, मक्खन और फिश लिवर ऑयल। कुछ विटामिन डी हमारे शरीर में तब भी बनता है जब त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है। मिनरल्स, हमारे शरीर को उसके प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हड्डियों और दांतों के निर्माण, रक्त के निर्माण, रक्त के जमने और मांसपेशियों, नसों और थायराइड ग्लैंड आदि के कामकाज के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को मिनरल्स की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को जिन महत्वपूर्ण मिनरल्स की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम। इन मिनरल्स का उपयोग हमारा शरीर उनके सॉल्ट के रूप में करता है, न कि एलिमेंट के रूप में। वाटर, पानी जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन हमारे शरीर में इसका कोई फूड वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति कई हफ्तों तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है लेकिन पानी के बिना कुछ दिनों में मर जाएगा। Water provides a liquid in which other substances can dissolve and move within the body or eliminated from the body. हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। पचा हुआ भोजन शरीर की सेल्स तक पहुंचाने के लिए, शरीर के चारों ओर हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण केमिकल्स को पहुंचाने के लिए, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, पानी पचा हुआ भोजन घोलता है जो फिर ब्लड में चला जाता है। ब्लड में ज्यादातर पानी होता है। ब्लड में मौजूद पानी पचा हुआ भोजन शरीर के सभी हिस्सों में प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। ब्लड में मौजूद पानी शरीर के चारों ओर हार्मोन जैसे केमिकल्स को भी ले जाता है। रेफेज या डायट्री फाइबर, रेफेज भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थ है जिसे पचाया नहीं जा सकता। रेफेज मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक इंडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जो प्लांट सेल वॉल्स में मौजूद होता है। रेफेज को डायट्री फाइबर भी कहा जाता है। डायट्री फाइबर का अर्थ है खाया जा सकने वाला फाइबर। पानी की तरह रेफेज हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। हालांकि रेफेज का कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे भोजन में इसकी उपस्थिति आवश्यक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सामान्य कामकाज के लिए रेफेज की आवश्यकता होती है। रेफेज मुख्य रूप से पौधों के उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है जिन्हें हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। हमारे भोजन में रेफेज या आहार फाइबर के कुछ अच्छे स्रोत हैं: फल, सब्जियां और साबुत आटे के उत्पाद जैसे साबुत आटे की चपाती और साबुत आटे की रोटी। बैलेंस्ड डाइट, पूरे दिन में हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा डाइट कहते हैं। डाइट में अनाज जैसे गेहूं और चावल, दालें, फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे और दूध आदि से बने कई खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
जिस डाइट में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में पर्याप्त मात्रा में पानी और रिफेज भी होता है। कुछ फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कुछ फैट से भरपूर होते हैं, जबकि अन्य में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स अधिक हो सकते हैं। कोई भी एक फूड आइटम हमें पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें अपने दैनिक भोजन में कई अलग अलग फूड आइटम को शामिल करना चाहिए, जो एक साथ लेने पर हमें पर्याप्त मात्रा में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। हमें पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए और रफेज युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। बैलेंस डाइट में निम्नलिखित समूहों में से प्रत्येक से पर्याप्त फूड आइटम शामिल होने चाहिए। अनाज, गेहूं और चावल से बनी चीजें, आलू, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने के लिए। मक्खन, घी और तेल वसा प्रदान करने के लिए। दालें, दाल, मटर, दूध, पनीर, मछली, मांस, चिकन और अंडे आदि प्रोटीन प्रदान करने के लिए। सब्जियां और फल विटामिन, खनिज और मोटा चारा प्रदान करने के लिए। If you like my video, please subscribe my channel. इस चैप्टर के फुल नोट्स आपको मेरी वेबसाइट learnequny.com पर अवेलेबल है।